এই ইসরায়েল নিয়ে ওর গানটা ছিল শোনো। এবার একটা গান গেয়ে নিয়ে আসবেন। নমস্কার, আপনারা শুনছেন উত্তরের কণ্ঠ। উত্তরের কণ্ঠ থেকে আমি প্রভাত বসাক, তুফানগঞ্জ, কোচবিহার। গতকাল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির কোচবিহারের জনসভা ছিল। এই জনসভায় যে লোক হয়েছে, একে সুনামি ছাড়া আর কি বলা যায়। মাননীয় মোদীজি পশ্চিমবাংলার চিত্র কী দাঁড়াবে আগামী ভোটে, তার একটা রূপরেখা পেয়ে গেছেন। সেটা গেল একটা দিক। আমরাও জনসভা কভার করতে গেছিলাম, কিন্তু ভিতরে ঢুকতে পারিনি, এমন অবস্থা। সেটা গেল একটা দিক। আরেকটা দিক, আমরা যখন জনসভা করে ফিরে আসি, সেই সময় মারগঞ্জে আমাদের গাড়ির উপর অ্যাটাক হয়। শুধু আমাদের গাড়ি বলবো কেন, অনেক গাড়ির উপরই অ্যাটাক করে তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনী। বক্সার অর্থাৎ রাজেশতন্ত্রীর নেতৃত্বে তৃণমূল এই অপকাজগুলি করে। গত কয়েক বছর ধরে মারগঞ্জে কোনো বিরোধী কার্যকলাপ করতে দেন না এই তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনী। আপনারা সকলে এখনও আছে, দেখে আসতে পারেন। বিজেপি পার্টি অফিসের সামনে একটা গোবর ফেলে ব্লক করে রেখেছে। এটা মিথ্যা কথা নয়, আপনারা গেলে এখনও দেখে আসতে পারেন। কালকে আবার দেখা গেল কুচবিহার ফেরত, মিটিং ফেরত লোকজনের উপর ব্যাপক হামলা। আমার গাড়ির উপরও হামলা করে। পুলিশ কোনো ক্রমে অ্যাসকর্ট করে, ব্যারিকেড করে আমার গাড়িকে বের করে দেয়। যাদের আমি চিনতে পেরেছি, তার চেয়েও পুলিশ ভালো জানে কারা এই গাড়ি ভাঙচুর করেছে। তা এই করে তৃণমূল সারা পশ্চিমবাংলা জুড়ে বাঁচতে চাইছে। সন্ত্রাস, তৃণমূলের মূল কথাই হয়ে গেছে সন্ত্রাস। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজির শোভাযাত্রায়ও তৃণমূল আক্রমণ করেছে। তারপরেও দেখলাম অভয়ের মা বলে কথিত বিখ্যাত সেই অভয়ের মায়ের যত ফেস্টুন ফ্ল্যাগ পোস্টার লাগিয়েছিল সব ছিঁড়ে পুকুরের জলে নিক্ষেপ করেছে তৃণমূল। এটাই তৃণমূলের কালচার। সারা তুফানগঞ্জ, সারা কোচবিহার জুড়ে একই কাজ করছে। যেখানেই বিজেপির ফ্ল্যাগ ফেস্টুন লাগানো হচ্ছে সব ছিঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। এই করেই তৃণমূল পশ্চিমবাংলা নির্বাচন জিততে চাইছে। কিন্তু জনগণ অন্য কথা বলে। আজকে জনগণ মুখ খুলছে না, জনগণ চুপ করে আছে। এর পরিণাম কি দাঁড়াবে সেটা ভবিষ্যতই বলবে। আপনারাও বিচার করুন, দেখুন পশ্চিমবাংলার জনগণ, পশ্চিমবাংলায় মমতা ব্যানার্জি কী রাজত্ব কায়েম করেছে, যেখানে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার নেই। এসব কথা আমরা দেখলাম মালদার মথাবাড়ি কাণ্ড। সেখানে দেশবিরোধী শক্তি, জিহাদি শক্তি, সেখানে 7 জন বিচারপতিকে প্রাণে মারতে চেয়ে ভারত রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতি, ভারতের সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করেছে। সামনে হয়তো মোফাক্কিরুল ইসলামকে বলির পাঠা করা হয়েছে। আসল ঘটনা হলো তৃণমূলের অঞ্চল পঞ্চায়েত এবং তৃণমূলের এমএলএ সাবিনা ইয়াসমিন সবার আগে উস্কানি দিয়ে এই গণ্ডগোল পাকিয়েছে। এনআইএ তদন্ত হচ্ছে,
দেখি ভবিষ্যতে কি বেরিয়ে আসে। যেটা দেখা যাচ্ছে, বিএলওরা ইচ্ছাপূর্বক মানুষের নাম কেটে দিয়ে অশান্তি সৃষ্টি করেছে। হোমগার্ডরা তৃণমূলের মমতা ব্যানার্জির কথা মতো মানুষকে উস্কানি দিয়ে উত্তেজিত করেছে। এই সমস্ত রিপোর্ট বিভিন্ন সমাজ মাধ্যম ও সংবাদপত্রে বেরিয়ে আসছে। আসুন, পশ্চিমবাংলার এই অপশক্তি, মানুষের চাকরি নাই, বাকরি নাই, বেকাররা রাস্তায় ফেঁপে করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এই অপশক্তিকে পরাস্ত করে পশ্চিমবাংলায় পরিবর্তন নিয়ে আসি এবং দেখি মাননীয় মোদিজি পশ্চিমবাংলার উন্নতির জন্য কী রূপরেখা দিলেন, আমরা শুনে আসি। भारत माता की वंदे। मैं अपना भाषण शुरू करूं उसके पहले काफी लोग कुछ पेंटिंग बना करके ले आए हैं। मैं एसपी जी के साथियों को कहूंगा को जो भी ऐसे पेंटिंग लेके बना के लाए हैं उनसे कलेक्ट कर ले। इस चुनाव में जो उम्मीदवार है उन सबसे मेरा आग्रह है कि जरा आगे आ जाए। जो कैंडिडेट है, मैं 1-2 मिनट इन सब के पास जाकर के आपके पास आता हूं। कूच बिहार के मेरे प्यारे भाई और बहनों, सोबाई के आमी नमस्कार जानाई। सोगो के जानांग मोर दंडोबोत। कूच बिहार की इस पवित्र भूमि से मैं मदन मोहन ठाकुर जी, बाणेश्वर महादेव और गोसानीमारी कामटेश्वरी के चरणों में प्रणाम करता हूं। इस धरती की महान संतानें ठाकुर पंचानन वर्मा, चिलाराय और सत्येंद्र नारायण मुजुमदार, बंगाल की ऐसी सभी महान विभूतियों को भी मैं नमन करता हूं। साथियों, कुछ दिन पहले राजधानी कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड से मैंने बंगाल में परिवर्तन महाअभियान की शुरुआत की थी। ब्रिगेड ग्राउंड की वो ऐतिहासिक तस्वीरें, वो जन सैलाब, जनता का उत्साह, जनता का जुनून, तब से पूरे टीएमसी सिंडिकेट घबराया हुआ है। और आज मैं देख रहा हूं ब्रिगेड ग्राउंड में जो बिगुल बजा, कूच बिहार ने उस पर पक्की मोहर लगा दी है।
इस माहौल और हुजूम ने ये पक्का कर दिया है, टीएमसी के पापों का घड़ा अब भर चुका है। पूरे बंगाल में इस समय एक ही आवाज गूंज रही है, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। भाइयों बहनों, आज कुछ बिहार में जो दिख रहा है, ये आप सबका विश्वास है। मैं आज हेलीकॉप्टर से उतरा, जो भी वहां साथी रिसीव करने आए थे, मैं नमस्ते करता था और वो एक ही बात बोलते थे, अरे मोदी जी जीत जाएंगे, अरे मोदी जी जीत जाएंगे। हर एक और हेलीपैड से यहां आने तक ऐसा माहौल मैंने देखा, अच्छे अच्छे रोड शो भी फिक्के पड़ जाए, ऐसा उमंग और उत्साह देखा। और ये भी मैं इस मैदान में पहले भी आया हूं, लेकिन ये तो सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ये विश्वास है उज्जवल भविष्य के लिए, ये विश्वास है नए बंगाल के लिए, बीजेपी की नई सरकार के लिए। मैं इस आशीर्वाद के लिए आप सबको, पूरे बंगाल के मेरे भाइयों बहनों को सर झुका करके प्रणाम करता हूं। मोई तुमार गुलर मानसी आसोंग, तुम्हार आशीर्वाद आर भालोबासा मोर ताकत। साथियों, इस बार बंगाल में एक और टीएमसी का भय है, और इसका मुकाबला करने के लिए आपके पास भाजपा का भरोसा है। एक और टीएमसी के कटमनी और करप्शन का भय है, दूसरी ओर विकास को तेज रफ्तार देने वाली भाजपा का भरोसा है। एक और घुसपैठ कराकर विदेशियों को यहां बसाने का भय है, दूसरी ओर घुसपैठ रोककर सारे घुसपैठियों को बंगाल से बाहर करने का भाजपा का भरोसा है। एक और बदलती डेमोग्राफी से अपनी ही जमीन पर आजादी छीनने का भय है, दूसरी ओर अपनी माटी पर गर्व के साथ सिर उठाकर जीने का अटल भरोसा देने वाली भाजपा है। एक और सिंडिकेट राज में अपनी संपत्ति लूटने का भय है, दूसरी ओर सिर पर पक्का घर,
और जमीन के मालिकाना हक का भरोसा है। एक और संदेश खाली जैसी बहनों की चीखें और बेटियों पर होता निर्मम अत्याचार है। दूसरी ओर नारी शक्ति को सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण की मोदी की गारंटी है। एक और बढ़ती बेरोजगारी और पलायन का भय है। दूसरी ओर सुशासन, रोजगार और एक आत्मनिर्भर बंगाल का भरोसा है। साथियों, मैं आपको एक और बात कहूंगा। मतदान वाले दिन टीएमसी के गुंडे आपको जितना भी डराए, आपको कानून पर भरोसा रखना है। इस चुनाव में बंगाल से भय भागेगा। भाजपा की महाविजय से भरोसा जागेगा। बांग्ला থেকে ভয় পালাবে, মহাবিজয় থেকে সূর্য জাগবে। और मैं आपको भरोसा देता हूं, इस बार चुनाव के बाद इनके पापों का पूरा हिसाब किया जाएगा। चुन चुन के हिसाब किया जाएगा। 4 मई के बाद कानून अपना काम करेगा। चाहे कोई बड़े से बड़ा गुंडा क्यों न हो, इस बार न्याय होकर रहेगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, ये इतने वर्षों से बंगाल की जनता का पैसा लूटा गया है। हर भ्रष्टाचारी को ये जो लूटा हुआ पैसा है ना, वो जनता को लौटाना ही पड़ेगा। साथियों, यहां की निर्मम सरकार बंगाल की इस पावन माटी पर हर रोज लोकतंत्र को लहूलुहान कर रही है। ये निर्मम सरकार अपने आगे किसी संवैधानिक संस्था को कुछ भी नहीं समझती। आपने 2-3 दिन पहले ही देखा है, पूरे देश ने देखा है, देश के न्यायप्रिय नागरिक चौंक गए। कैसे मालदा में
न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाकर रखा गया। सोचिए, ये कैसी सरकार है, ये कैसी व्यवस्था है जहां जज और संविधान की प्रक्रिया भी सुरक्षित नहीं है। तो बंगाल की आम जनता की सुरक्षा की उम्मीद इन लोगों से कैसे की जाए? मालदा में जो हुआ वो केवल टीएमसी की उद्दंडता ही नहीं थी, ये इस निर्मम सरकार का प्रायोजित